میٹنگ میں پتہ لگ جائے گا کہ ریزولوشن کتنے بجے اسمبلی میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. ابھی تک میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. پرائم منسٹر کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے 5-6 آدمیوں کی، اس میں پتہ لگ جائے گا، اور اگر آج پیش ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے منڈے کو اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی، اور 172 بندے انہوں نے لانے. اور ابھی کھیل کل سے شروع ہو جائے گا. ابھی جلسہ لگا ہوا ہے. سو جہاں فیصلے ہونے ہیں انشاءاللہ تعالی 30 31 کو 29 کو بھی لگا لیں، 29 30 31 کو 72 گھنٹوں میں جہاں فیصلے ہونے ہیں ہو جائیں گے. اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے. میں عمران خان کے ساتھ اور میرا سارا شہر، کل آپ نے دیکھ لیا سب سے بڑی ریلی ہماری تھی. ابھی تک نون لیگ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کس طرف سے آنا ہے، ہم ان کو سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں. ابھی میں نے ڈی سی کو ہدایت کی ہے، راول پنڈی کو، آر پی او کو ہدایت کی ہے کہ ان سے پوچھیں، کیونکہ آنا تو انہوں نے مولویوں سے خطاب کرنے ہیں، اپنا تو ان کے پاس کوئی کراؤڈ نہیں ہے. جی میں جھوٹ نہیں بولتا، میری توقع سے بہت کم نون لیگ کی گیدرنگ ہے جی ٹی روڈ پہ. مجھے جب میں انتظامات کر رہا تھا، یہ غلطی میں نے بلاول کے جلسے میں بھی کی، 2900 لوگوں کی سیکیورٹی لگائی اور سرینا کے باہر آن اوتھ کہنے کے لیے تیار ہوں. 2900 لوگ نہیں تھے، کیونکہ میں نے خود ویڈیو ہے، اگر میڈیا دیکھنا چاہے تو میں کھڑا ہوں وہاں سامنے خود. اور فضل الرحمان صاحب کے پاس مدرسوں میں چھٹیاں ہیں، اور ان کے کراؤڈ سے جائیں، خطاب کرے، اور اگر وقت کی ضرورت پیش ہوئی تو وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر سیاست میں ووٹ لیے ہیں، یا عمران خان کے ٹکٹ، ہم تو ساری زندگی اپنے ٹکٹ پہ لڑتے رہے ہیں جی، لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں چٹان کی طرح. پاکستان کا کوئی ایسا انتخابی نشان نہیں ہے جس پر ہم نے الیکشن نہیں لڑا ہے. وہ سیب سے لے کے چاند سے لے کے اب قلم دوات پہ آ کے کھڑے ہیں. اور ہماری 15ویں منسٹری ہے الحمدللہ. منسٹری ہو نہ ہو، ہم اور ہمارے حامی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان اقتدار میں ہو نہ ہو، ہم اور ہمارے حامی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کل کے جلسے کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہو رہی. حکومتیں بنتی ہیں، 50 سال کی سیاست میں، اس کے پہلے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کسی حکومت کو ٹائم پورا کرتے نہیں دیکھا. لیکن کل کے جلسے کے بعد یہ کہتا ہوں، جس طرح لوگ آئے اور جس طرح لوگ راول پنڈی شہر سے نکلے، اور 1977 کے بعد میں نے پہلی دفعہ لیڈ کیا جلوس کو، ورنہ میں اب ریلیوں شیلیوں کو لیڈ نہیں کرتا. اور چھوٹی سی بات کرتا ہوں، حالانکہ پرائم منسٹر کی خواہش تھی کہ میں بہت لمبی تقریر کروں. میں نے کہا جناب میری ایک ہی تقریر ہے کہ جو حلالی ہے، اصلی ہے، نسلی ہے، اور اگر جس نے آپ کے نشان یا آپ کی حمایت پر ووٹ دیے ہیں اس کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ وہ بلیک میلر ہے، وہ بکاؤ مال ہے، اور علاقے کے لوگوں کو ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی بر صغیر کی سیاست میں ایک اسلامک اٹامک حکومت کے تحت جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو کمزور کرنے کی سازش ہے. یہ گینگ آف دی 3 جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے. جب بھٹو کو پھانسی لگی تو میں بتانا نہیں چاہتا کہ قلم کس نے ضیاء الحق سے لیا، میں تاریخ میں چھوڑ دیتا ہوں، اتنے صحافی موجود ہیں، کہ کس نے ضیاء الحق کو کہا کہ یہ قلم ہمیں دے دو جس کے سگنیچر پہ بھٹو کو پھانسی لگی. اور وہ سارے لوگ جن کو بھٹو کے پھانسی لگنے کی وجہ سے اقتدار نصیب ہوا، آصف زرداری کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 83 میں اپنے گاؤں نواب شاہ میں کونسلر نہیں بن سکا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی شام کو سندھ کا ترجمان کہہ دے گا. اور حاکم علی زرداری کی سیٹ پر اس کی ضمانت ضبط ہوئی. بعد میں پلینر تھا، شاطر تھا، اس نے سیاست کو ایسا کھیلا کہ آج
سے کچھ سال پہلے یا یہ ہے یا عیدی ہے، پاکستان میں بھٹو خاندان کی سیاست نہیں ہے، زرداری اور عیدی کی سیاست. کوشچن. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کی سازش کہاں پنپ رہی ہے؟ دیکھیں سیاستیں ہوتی ہیں انٹرنیشنل. کل عمران خان نے ایک بڑی بات کی. پہلے میں یہ بتا دوں کہ جے یو آئی کے پاس آج کے جلسے کی اجازت نہیں ہے، دھرنے کی بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کو دھرنے کی اجازت نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو آج کے جلسے کی اجازت ہے. جلسہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا اور مہمان اداکار ہوں گے نون والے اور بلاول بھٹو. اپنا ان کے ساتھ کوئی کراؤڈ نہیں ہے. اور جو انٹرنیشنل سازش ہوتی ہے، ظاہر ہے جن ملکوں کی معیشت کمزور ہوتی ہے وہاں آزاد خارجہ پالیسی ایک جرأت مند سیاستدان ہی کر سکتا ہے، اور عمران خان ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھ رہا ہے. اور ظاہر ہے یوکرین اور روس کے مسئلوں کے بعد گندم اور آئل پرائسز کی دنیا میں بحران ہے، ہم بھی اس سے گزریں گے. جی میں نے رات سنا ہے کہ شاہ محمود نے کہا ہے، مجھے اس لیٹر کا کچھ نہیں پتا. میں زندگی اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اپوزیشن نے اپنے بندے پورے کرے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو اصلی اور نسلی ہیں وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. میں کبھی وہ بات نہیں کروں. میئر آف لندن صادق خان کی کال پر لندن میں مقیم یورپین اور برطانوی مرد و خواتین نے ہزاروں کی تعداد میں ٹرفالگر اسکوائر پر جمع ہو کر یوکرین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اس موقع پر میئر آف لندن سمیت کاؤنسلرز و معروف فنکاروں نے بھی مظاہرے میں حصہ لیا اور صدر پیوٹن پر زبردست تنقید کی. مظاہرے کا احوال جانیں گے وسیم قاسمی کی اس رپورٹ میں. وسطی لندن کے ٹریفالگر اسکوائر پر میئر آف لندن صادق خان کی میزبانی میں ایک مظاہرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے برطانوی باشندوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی اور یوکرین پر روسی حملوں اور یوکرین میں سویلین کی جان و مال کے شدید نقصان پر اظہار برہمی کیا اور ظاہر کیا کہ برطانیہ کی حکومت اور عوام یوکرین کے عوام کے ساتھ ہیں اور روسی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس موقع پر حال ہی میں یوکرین سے لندن پہنچنے والے یوکرینی باشندوں نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دوست عزیز یوکرین میں روسی جارحیت کا شکار ہو رہے ہیں. برطانیہ اور ان کے عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے نہ صرف پناہ دی بلکہ مکمل ساتھ کا یقین دلایا. So my name is Elliot and I'm here to support Ukraine. I think what Putin is doing is totally wrong and Ukraine should always be in our heart. Hi, my name is Philip and I'm here to stand with Ukraine. I think that what Putin's doing, it's totally not right and it's against the human rights. We want our country to be saved from Russian war and we'll be really thankful for anything that will help Ukraine. I've got friends both in Russia and in Ukraine and I think it's quite a travesty that Putin has upset 100 years of friendship, of cooperation. I think Putin forgets Russia and the UK have been allies 3 times. I live in London and I actually volunteer in a Ukrainian cultural center and at 154 Holland Park Avenue. This is where we collect donations and this is where all refugees are coming now, especially those who can't speak English or those who have questions, which are a lot for someone who does know the system, and we welcome them all, we give them food. Born in the UK, I'm a Polish citizen and I have 20 Ukrainian refugees in my home in Poland. We march through a city that's not being bombed and it's very hard to imagine what Ukrainians are going through. ٹریفالگر اسکوائر کے اس اجتماع سے خطاب کرنے والے ایم پیز، کاؤنسلرز اور دیگر معروف فنکاروں نے یوکرین کی عوام کو یقین دلایا کہ وہ اخلاقی، مالی اور سیاسی طور پر ان کے ساتھ ہیں اور عالمی طاقتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ روس پر دباؤ بڑھائیں تاکہ اس جنگ کو عالمی جنگ بننے سے روکا جا سکے. To support my people back home, to support my family because all of them are there, and the message for Putin and for Russia that they still don't understand what he's doing to our country. Just get your hands out of my country, of my people, of these women, children who are suffering now, not only in Ukraine. Ukraine is a disaster, but even around the world. We are in opposition to fascist Russia, and we
we are here because we are with Ukraine, because a lot of friends and relatives from our country, from Russia. Every day I experience a lot of guilt that I'm here in a safe place, and I feel a lot of pain for my country and for people that stayed in there, and for my friends that are still in there. I'm here because I'm Ukrainian, first of all. All my family, my relatives, friends, they stay in Ukraine. My uncle, he's a soldier. I'm very brave and proud that I'm Ukrainian. I am solidary with him, with all my family. I support Ukrainian. I really appreciate their choices. लंदन यूक्रेन के साथ खड़ा है के नाम से इस इज्तिमा में ख्वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत नौजवानों की बड़ी तादाद हाथों में सदर पुतिन और रूसी अफवाज के खिलाफ प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर जंग रोकने और जुल्म बंद करो के अल्फाज दर्ज थे। मेरठ लंदन सादिक खान की कॉल पर लंदन में बसने वाले मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले यूरोपियन यूनियन के लोग और यूक्रेनियन लोग ने मिलकर यहाँ ट्रफालगर स्क्वायर में हज़ारों की तादाद में रूस के खिलाफ मुजाहरा किया और आलमी ताकतों को जो है ये मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द रूस पर प्रेशर डालें और यूक्रेन में होने वाली जंग को बंद किया जाए। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम के मकामी चर्च में ईस्टर्न 11 क्रिकेट क्लब के 50 साल मुकम्मल होने पर एक पुरवाकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बर्मिंघम भर से नौजवान खिलाड़ियों समेत कम्युनिटी की अहम शख्सियात और काउंसलर्स ने शिरकत की। इस मौके पर सीजन में आला कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। बर्मिंघम से आबिद काज़मी रिपोर्ट कर रहे हैं। बर्मिंघम ईस्टर्न 11 क्रिकेट क्लब के 50 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें गुज़िश्ता सीजन में आला कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। साबिक लॉर्ड मेयर बर्मिंघम काउंसलर ख्वाजा महमूद हुसैन, काउंसलर नगीना जाहिद हुसैन और दीगर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि साउथ एशियन रीजन के लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। उनका मजीद कहना था, जहाँ कहीं भी दुनिया में जाते हैं अपनी सकाफत, कल्चर और खेल को भी साथ लेकर जाते हैं। ऐसे ही ईस्टर्न 11 क्रिकेट क्लब गुज़िश्ता 50 सालों से अपनी खिदमात पेश कर रहा है। इस क्लब ने ग्रॉस रूट लेवल पर न सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट किया बल्कि नौजवानों में सेहतमंद सरगर्मियों को उजागर किया। साबिक लॉर्ड मेयर बर्मिंघम ख्वाजा महमूद, काउंसलर नगीना जाहिद और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस क्लब ने 50 सालों में नौजवानों की तरबियत और सेहत के लिए अहम इकदाम किए। कि फिटनेस के बारे में भी वो अपनी सेहत का उनका जो हेल्थ है वो थोड़ी इम्प्रूव होती है और एक्सरसाइज भी उनको मिलती रहती है। As you can see at this event, the majority of the people here today are mainly youngsters from like my Aston Ward, who I'm a councillor for, and I'd encourage more youngsters to get involved because, as you know, cricket could be very good for your health and well-being. It's a skill and obviously it brings community together. We are sponsoring this Eastern 11 Cricket Club with the kid and all these our young children here, and because of the sport, I think regardless of the religion, anybody can participate. And this is a good thing. 1970 से ये क्लब चल रहा है और उसको हम अभी तक के कामयाब रखे हुए और इंशाल्लाह आगे भी कामयाब रखेंगे। मेन ज़रूरी चीज़ था कि जितने यंगस्टर्स नौजवान जो है ग्रास रूट क्रिकेट यहाँ से ख़त्म होते जा रहा है, तो ज़रूरी है कि हमारे एशियन कम्युनिटी जितने भी है हम उनको एक दरवाज़ा खोल दें। शुरका का कहना था कि क्रिकेट क्लब बच्चों की मुस्बत सरगर्मियों को उजागर करने और सेहतमंद मुआशरे को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इसलिए कम्युनिटी को चाहिए कि वो अपने बच्चों को क्रिकेट क्लबों में लाजमी लाएं। इस मौके पर आइंदा साल के लिए नई क्रिकेट किट्स भी मुतारफ करवाई गई हैं, जबकि 50 साल मुकम्मल होने पर केक काट कर खुशी का इजहार भी किया गया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में भी इमरान खान की आवाज़ अमर बिल मारूफ पर लब्बैक कहते हुए इजहार यकजहती के लिए PTI UK के कारकुनान एक जगह जमा हो गए। इस्लामाबाद में जलसे पर लाइव होने वाली इमरान खान की तकरीर सुनकर अपने जज्बात का इजहार करते रहे। इस मौके पर कारकुनान ने पोस्टर्स, बैनर्स और कतबे उठा रखे थे। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में अमर बिल मारूफ जलसे से होने वाले खिताब को लाइव सुनने की गर्ज से बर्मिंघम में मौजूद PTI के कारकुनान एशियन अक्सरियती एरिया स्टिफोर्ड रोड पर इकट्ठे होकर लाइव तकरीर सुनकर इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करते रहे। इस दौरान कारकुनान ने बैनर्स, कतबे उठा रखे थे जिन पर लिखा था, निकले नए निजाम की खातिर, निकले पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान के झंडे उठाए कारकुनान जज्बाती अंदाज में नारे लगाते रहे।
शुरका का कहना था कि हम हक के साथ हैं और आज के दौर में इमरान खान हक पर है और हम बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती की गर्ज से यहाँ जमा हुए हैं। इस मौके पर इनामुल हक नामी, जाहिद परवेज, अब्दुल मुईद, रुखसार अहमद, नासिर खान और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इमरान खान की आवाज अमर बिल मारूफ पर लब्बैक कहते हुए इजहार यकजहती की गर्ज से यहाँ जमा हुए हैं और हर मुमकिन तौर पर इमरान खान के साथ हैं। पाकिस्तान को दोबारा करप्ट माफिया के साथ नहीं देखना चाहते। मुल्क के लिए, इमरान खान के लिए मैं आई हूँ क्योंकि बहुत ज्यादती हो रही है। ऐसा बंदा सदियों में पैदा होता है, हमारा लीडर जो ऐसे सदियों में पैदा होता है, तो बहुत ही जो उनके खिलाफ लोग खड़े हैं। महंगाई है, सारी दुनिया में महंगाई है, मगर मौका तो दें उनको। इंशाल्लाह ये जो सेशन जा रहा है इसमें भी इमरान खान है और जो अगला 5 साल है वो भी इमरान साल के हैं। बर्मिंघम के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज की नुमाइंदगी करते हुए हम आज इमरान खान साहब के पैगाम के साथ खड़े हुए और हम खान साहब को और पाकिस्तान को ये बता देना चाहते हैं कि अब ये कौम एक जागी हुई कौम है, इस कौम को अपने हकूक मालूम है। आज बर्मिंघम तहरीक इंसाफ, पूरा बरतानिया की तहरीक इंसाफ ने अब पूरे शान और शौकत जाब जलाल के साथ खान साहब के साथ खड़े हैं। नए 5 साल इंशाल्लाह अगले 5 साल के लिए भी इमरान खान 2 ताई अक्सरियत से आ रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को, पूरी पाकिस्तान की आवाम को, ओवरसीज़ को भी एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि हम पाकिस्तानी इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क बहुत तरक्की कर रहा था और इंशाल्लाह करता रहेगा और इमरान खान को कोई कुव्वत भी उसको नहीं हटा सकती। जिंदा कौमों की ये निशानी होती है कि वो जब भी उनके हक पर कोई डाका मारने की कोशिश करता है तो वो लोग बाहर निकलते हैं। आज इमरान खान ने इस कौम को जगा दिया है। पाकिस्तान के अंदर और बैरून पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर भी जहाँ जहाँ कश्मीरी और पाकिस्तानी मौजूद हैं, आज लोग बाहर सड़कों पर निकले हुए हैं और इमरान खान के पैगाम को यहाँ बरतानिया में भी सुन रहे हैं। वो इमरान खान जिसने इस्लाम फोबिया के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ सवाल उठाए, जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एब्सोल्युटली नॉट की ललकार लगाई, जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर नो मोर की ललकार लगाई, हमारा कप्तान इमरान खान की लाइव तकरीर सुनकर कारकुनान जज्बाती नारे लगाते रहे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में दिफाई साजो सामान, सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया की तीसरी और एशिया की सबसे बड़ी नुमाइश डिफेंस सर्विसेज एशिया की तैयारियां उरूज पर हैं। मलेशिया की वजारत दिफा और वजारत खारजा के इश्तराक से मुनक्किद की जाने वाली ये नुमाइश 28 मार्च से 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। जावेद रहमान की रिपोर्ट देखिए। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में दिफाई साजो सामान, सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया की तीसरी और एशिया की सबसे बड़ी नुमाइश डिफेंस सर्विसेज एशिया 2022 की तैयारियां उरूज पर हैं। मलेशिया के वजीर दिफा दातो श्री हसामुद्दीन बिन हुसैन ने चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस सर्विसेज मलेशिया जनरल दातो श्री तान श्री हाजी आफंदी, मलेशिया के वजीर खारजा दातो श्री हमजा जीनुद्दीन और दीगर आला सरकारी ओहदेदारों के हमरा एग्जीबिशन सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। मलेशिया के वजीर दिफा डॉक्टर श्री हशामुद्दीन हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉकडाउन की वजह से ये नुमाइश 4 साल बाद मुनक्किद की जा रही है। इस साल नुमाइश में मेजबान मुल्क मलेशिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ईरान, इराक, तुर्की, सऊदी अरेबिया और वतन अजीज पाकिस्तान समेत दुनिया के 50 से जायद ममालिक शरीक हो रहे हैं, जबकि 45 मुख्तलिफ ममालिक के दिफाई वज़रा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, बहरी, बर्री और फिजाई अफवाज के सरबराहान, पुलिस चीफ, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान समेत 350 आला सतही वफूद शिरकत कर रहे हैं। For the last 4 years, I think we have been doing very well in terms of assets that are available to us. But when it comes to this kind of events, we need to see whether we can upgrade whatever technology that we have currently. वजीर खारजा दातो श्री हमजा जैनुद्दीन का कहना था कि इस नुमाइश में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के माबैन दिफाई साजो सामान की खरीदारी, टेक्नोलॉजी के तबादले और दीगर अहम मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। Bukan satu perkara yang mudah dalam landscape COVID pada hari ini, tetapi apabila kita fahami bahawa
keputusan telah pun dibuat untuk kita menganjurkan इस नुमाइश में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन और डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सजाए गए पवेलियन में वतन अजीज पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर, जदीद तरीन मशीन गन्स और दीगर असला नुमाइश के लिए रखा गया है। उनका मजीद कहना था कि मुकामी और बैन अल-अक़वामी सहाफ़ियों की सहूलियात के लिए जदीद सहूलत से आरास्ता बैन अल-अक़वामी मियार का मीडिया सेंटर कायम किया गया है। 92 न्यूज से मुकामी लोगों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। And most important is we can try to make the defense cooperation back as normal as usual. So I hope this DSA can showcase to the world that we still can hosting a big exhibition to tell the world it's time for us to enhance our defense industry cooperation. Defense industry, different businesses in Malaysia, because we try to start again after the pandemic, so we tried our level best to give the best for the dedication of scientists. Managed to go through for the COVID-19 pandemic, and like the defense minister said just now, it's a very important signal to everyone, all the world, about that Malaysia is opening the border and back to the business, and this will bridge the prosperous relation. सिक्योरिटी के सख्त तरीन हिसार में जारी रहने वाली इस सनती नुमाइश में दुनिया भर से 25,000 से ज्यादा तिजारती वफूद खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये नुमाइश 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। Yes, DSA 22 is delivering a very beautiful, clear message to the entire world that Malaysia has opened its border and arms to welcome the world. From 1st April 2022, Malaysia is opening its international borders for the international tourists, exhibitors and visitors as well. With my camera team, Javedur Rahman, 92 News, Kuala Lumpur, Malaysia. पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई की जानिब से पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एजाज़ में अवार्ड्स तकरीब का अहतमाम किया गया। बिजनेस कम्युनिटी ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों की पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खिदमात को सराहा, जबकि 92 न्यूज़ ने अमारात में नंबर 1 चैनल होने का एजाज़ बरकरार रखते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की उमंगों की भरपूर तर्जुमानी की। तकरीब का मज़ीद अहवाल सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में जानिए। अमारात में मुकीम पाकिस्तान की सहाफ़ी कम्यूनिटी को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई ने अवार्ड तकरीब का अहतमाम किया गया और सहाफ़ियों के एजाज में जोहराना दिया गया। अवार्ड्स तकरीब में बिजनेस काउंसिल के डायरेक्टर्स ने खास तौर पर शिरकत की। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के सदर अहमद शेखानी और डायरेक्टर्स ने सहाफ़ियों को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था सहाफ़ी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के सदर अहमद शेखानी, डायरेक्टर्स मोहम्मद इकबाल दाऊद, शब्बीर मर्चेंट, सुल्तान महमूद, नफीस अहमद, मुस्तफ़ा अल्ताफ और दीगर का कहना था कि अमारात में मुकीम पाकिस्तान की सहाफ़ी कम्युनिटी ने न सिर्फ मुल्क का मुस्बत इमेज दुनिया के सामने दिखाने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि कम्युनिटी के मसाइल को भी हल करने में अपना किरदार अदा किया। सहाफ़ी हजरात का जर्नलिज्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पाकिस्तान को प्रेजेंट करने में। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत काम किया है, तो उसको अप्रिशिएट करना पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का फर्ज था। सहाफ़ियों का जो इंतहाई पॉजिटिव रोल रहा है उसको हमें अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करूँगा। इन्होंने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अलावा जितनी भी पाकिस्तान की जितनी कम्युनिटीज़ यहाँ रह रही हैं और जितने भी लोग हैं सबको बड़े अच्छे तरीके से कवर करते हैं। It's really appreciating and we thank all the journalists here who work with us on behalf of Pakistan Business Council. हमारी एक्टिविटीज़ को कवर करना, उसको सही अंदाज में पेश करना, सही तरीके से सही खबरों को, इसके सिलसिले में हमने ये इवेंट बुलाया है और हम सारे मीडिया वालों के शुक्रगुजार हैं। तकरीब में सदर अहमद शेखानी और दीगर ने नुमाया खिदमत पर सहाफ़ियों में तारीफी असनाद, सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स तकसीम की। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी अशफाक अहमद, अनायतुर रहमान, वहीद अब्बास, सुहेल खावर, ताहिर मुनीर ताहिर, खालिद गोंदल, आमिर मलिक और अहमद कुरैशी समेत दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की और सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स वसूल की। आखिर में रिवायती खानों से मेहमानों की तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। दुबई में मुक़ीम मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी और समाजी शख्सियत हनीफ मर्चेंट की जानिब से बिजनेस कम्युनिटी के एजाज़ में इशाइया दिया गया। इशाइया तकरीब में काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान हसन अफजल खान, वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त इमरान चौधरी समेत दुबई में मुक़ीम सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पर भी गुफ्तगू की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद रिपोर्ट कर रहे हैं।
बिजनेस कम्युनिटी किसी भी रियासत की रीढ़ की हड्डी होती है। अमारात में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। गुज़िश्ता रोज अमारात में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हनीफ मर्चेंट ने बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में इशाइया दिया। इशाइया में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम इमरान खान के करीबी दोस्त इमरान चौधरी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई मुजफ्फर टप्पी, अमाराती बिजनेसमैन, पाकिस्तान से आए मारूफ शायर फरहत अब्बास शाह समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इशाइया तकरीब में पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात और तहरीक अदम एतमाद पर भी गुफ्तगू की गई। अमारात में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी हो रही है। इन हालात में पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, जबकि सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अपनी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ पर एतमाद का इजहार करते हुए राय दी। तकरीब के मेजबान हनीफ मर्चटल्ला, जबकि मेहमानों में इमरान चौधरी, मोहम्मद फारूक, मियां मुनीर हांस, फरहत अब्बास शाह, अशरफ खान और दीगर का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस तरह की तकरीबात में पाकिस्तानी कम्युनिटी का दीगर कम्युनिटीज खास तौर पर अमाराती बिजनेस कम्युनिटी से मिलने का मौका मिलता है। अमारात में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। यहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के सब जो लोकल फ्रेंड्स हैं हमारे पिछले 40-45 साल पुराने वाले, वो आए थे, तो माशाल्लाह अच्छा गेट टुगेदर हो गया और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। डिनर रखा था, उसमें आई थिंक 50% जो थे वो यहाँ के बड़े अमाराती बिजनेसमैन आए हुए थे, जो कि देख के बड़ी खुशी हुई कि इंटरेक्शन हमारा जो अमारातियों के साथ होता है, और इसमें बड़े बड़े ब्रांड नेम्स थे। देख लेना कि किसी दुख की कहानी तो नहीं, ये जो आंसू हैं कहीं उसकी निशानी तो नहीं, जिस तरह शहर से निकला हूँ मैं बीमार तेरा, ये उजड़ना है कोई नकल मकानी तो नहीं। हनीफ मर्चेंट साहब जो एक बड़े अहम बिजनेसमैन है, एमिरेट्स न्यून एक बड़ा नाम है, हमेशा ये पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं। दिस प्लेस इज़ लाइक ए पैराडाइज और माशाल्लाह हॉस्पिटैलिटी अनमैचेबल। आपस में मिल रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़, मुझे मेरे लिए ये समझ ले सब सरप्राइजिंग है। पाकिस्तान में जारी सियासी कशमकश को देखते हुए अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस अहम मोड़ पर पाकिस्तान किसी भी किस्म के सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मल नहीं हो सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं, जबकि वजीर आजम इमरान खान के करीबी दोस्त इमरान चौधरी ने दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। अपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि मुल्क है तो हम सब हैं। जमहूरी सिस्टम को चलने देना चाहिए और आपस के इख्तलाफात मिल बैठकर हल करने चाहिए। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में मजलिस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के सैकड़ों अफराद शरीक हुए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मौजूदा सियासी हालात इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके और जमहूरियत के नाम पर सौदेबाजी हो रही है। उमर अली की रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब में मजलिस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हमारा माशरा तबाह हो चुका है और बेरारवी का शिकार हो चुका है, जिसको दुरुस्त करने के लिए जरूरी है कि इस्लामी असूलों को अपनाया जाए। इस ज़मन में तमाम सियासी और मजहबी जमातों को किरदार अदा करने की जरूरत है। इस वक्त जो फिजा मौजूद है उसके नतीजे में तो न ये कोई जमहूरी रवैया है जो पार्टी जो अपोजिशन भी और हुकूमत के लोगों की तरफ से भी रवा रखा जा रहा है, और न ही इससे मुल्क और कौम का कोई फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि वज़ादारी और शाइस्तगी और इख्तिलाफ को दुश्मनी ना बनाना, इस अमल की ज़रूरत है। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल कायम रखने के लिए जरूरी है कि हुकूमतों को मुद्दत पूरी करने दी जाए, मगर मौजूदा हालात में हुकूमत और अपोजिशन गैर जमहूरी रवैया अपनाए हुए है और टकराव की सियासत से मुल्क कौम का कोई फायदा नहीं होगा। कौम को तकसीम किया जा रहा है, जिसके खतरनाक नताइज बरामद होंगे। ज़रूरी है कि मुद्दत पूरी किए बगैर लोगों को हटाकर जो उसकी किसी की नाअहली हो तो उसको भी जो है वो मजलूम बना दिया जाए, तो इस तरह तो कोई भी नहीं चल सकता। तो ये निज़ाम चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुद्दत पूरी की जाए लेकिन दबाव पूरा डाला जाए। तो ये मॉडल जो है वो बेहतर मॉडल है, मैं समझता हूँ कि और फिर जो कुछ हो रहा है वो तो चंद इलेक्टेबल की बुनियाद पे हो रहा है। इंसानों की मंडी लग रही है, तो जब इंसानों को जानवरों की तरह ख़रीदो फ़रोख्त उनकी शुरू हो जाएगी, वफ़ादारियाँ ख़रीदी जाएंगी, बेची जाएंगी, तो ये कौन सी जमहूरियत का भला है और ये कौन सी अपोजिशन है और ये कौन सी हुकूमत है। तकरीब से मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ, जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल वहीद, अब्दुल मनान, राना उमर फारूक ने भी इजहार ख्याल किया। उमर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 23 मार्च के दिन की मुनासिबत से डॉक्टर खावर नदीम ने प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ तुर्की की मकामी बल्दिया के लोगों, पाकिस्तानी काउंसिल के अमले और काउंसिल पब्लिक अफेयर अमानुल्लाह मेमन ने शिरकत की। आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए।
तकरीब में कश्मीर के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। तुर्क हाज़रीन का कहना था कि भारतीय फौज की तरफ से जिस तरह कश्मीरी बहन भाइयों पर जुल्म सितम हो रहा है उसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। कोई ऐसा प्रोग्राम होता तो तुर्क होने के नाते कश्मीर का मुकदमा लड़ते हैं जो हमारी दीनी जिम्मेदारी है। तुर्क मेहमानों का मजीद कहना था कि 23 मार्च का दिन पाकिस्तान का नहीं, ये तुर्की का भी दिन है। तुर्की और पाकिस्तान की मुश्किलात एक हैं। हम हमेशा पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल में खड़े हैं। हमें बड़ी खुशी होती है जबकि पाकिस्तानी प्रोग्राम होता है और जो मोहब्बत मिलती है ये हमारे लिए किसी एजाज से कम नहीं होती। काउंसिल पब्लिक अफेयर अमानुल्लाह मेमन का कहना था जिस तरह वजीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर अगर देखा जाए तो इमरान खान और रजब तैयब उर्दवान के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता जो मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम पर बात करे। इमरान खान हमारे लिए किसी मसीहा से कम नहीं जिसने हमें इज्जत और वकार पूरी दुनिया में दिलवाया है। हम मुसलमान कहने को है लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। जिस दिन हम सही मुसलमान बन गए। पाकिस्तानी कम्युनिटी के सीनियर रहनुमा खालिद जोइया का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम होने से पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ तारुफ होता है। आखिर में तुर्क मेहमानों को सैयद अली गिलानी की किताब पेश की गई और मेहमानों की बिरयानी के साथ तवाज़ो की गई।